Welcome back. Sorry for disruption. I think reception is not brilliant here, and this is why I couldn't connect and the live session got interrupted. Right, so welcome back again. So what I was trying to say to you earlier was the assessment criteria. So because the assessment criteria is quite tough, so it depends on the method of study that you do and obviously which way you choose to study. And for me, I always suggest about studying in groups. And what happens is study in groups, make some short notes and stuff like that. So what actually happens is some of the final exams have negative marking as well. So this is also one of the things that you have to consider, which means obviously if you do one question correct of the multiple choice questions, you get +1 mark, and if you do one wrong, then you get -0.5 marks. So obviously you'd end up failing the exam if you did 50% correct and 50% incorrect, or even 70% correct and 30% incorrect, because you end up, obviously you have to have a passing marks over 50%. And in the registration exam, the passing marks are 70%. So you've got to think about that. So I normally suggest everybody who does the conversion course to not think about it as a part-time course. I think it's a condensed program where they're condensing 5 years of program in 9 months. So you can imagine what sort of level of assessment will be required in order to do this exam. So it's not a piece of cake, but at the same time it's not very difficult. So what you have to do is you'd have to study hard and follow the pattern and give as much as time you can on revision. And because it's not just about studying for things, obviously being a pharmacist overseas, you would have done most of the theoretical topics, but obviously doing it differently, the way we do it here in the UK, it's obviously a different story. Okay, so I wouldn't be able to give you a set timeline, but some students ask me if they will be able to work part-time whilst doing the OSPAP course, and it's very difficult to say that because I've known people who have done part-time courses, obviously enrolled into the OSPAP course and did part-time jobs, and they weren't able to succeed in the first instance, and obviously they had to repeat the courses. So it's up to you really whether you want to compromise on the course and you want to move forward. Because if you come from overseas, the other aspects to consider is if you don't pass in the first attempt, then you'll be required to extend your visa, and obviously there will be a lot of financial things that will be attached to your extension as well. So that's also one of the things. Okay, so what do we have? Another question, right? Somebody asked me another question about the English exam that people do overseas when they come from overseas and apply for OSPAP. So there was only one exam, that was IELTS, and now recently, I think on 25th of September, on World Pharmacist Day, they've added another exam that's called OET. So that's Occupational English Language Test. So Occupational English Language Test is sort of a similar exam, but obviously I haven't given it myself, so I wouldn't be able to comment on the specifics of this exam. What I can say is the band required is band B, and in all 4 categories, which is reading, writing, listening and speaking, in one sitting. So it's quite similar to the OSPAP IELTS exam, where you are required to do band 7 to achieve band 7 in all 4 categories of English test. Okay. So, okay, what's next question? I'm unable to see the comments and the reception is really bad. So the live session may be interrupted again. And I would like to apologize beforehand to see whether. So guys are joining. Thank you very much for joining. Which ocean is behind? Behind me is not ocean. It's a key. So I'm in Salford Keys. तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने बताया आपको मैं सॉल्फर्ड कीज़ में हूँ और ये मैनचेस्टर का एरिया है और ये जो है आप देख सकते हैं पीछे ब्रिज के ऊपर हूँ और ये मीडिया सिटी यूके कहलाता है और ये ग्रेटर मैनचेस्टर का पार्ट है और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में लोकेटेड है। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अच्छा ऑप्शन है कि वॉकिंग एंड टॉकिंग सेशन करें आप लोगों के साथ, रादर के भाई अनहेल्थी आप डेस्क के ऊपर बैठ रहे हैं घंटों और जो है सेशन किया जाए। तो इस वजह से ये मैंने चूज़ किया। व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द यूके एक्सेप्ट OSPAP? अच्छा, अगर आप बात करते हैं OSPAP के अलावा तो ऑप्शंस तो काफ़ी आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि यूके इंडस्ट्री जो है एजुकेशन के हवाले से ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर एजुकेशन और टूरिज्म जो है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ की इकोनॉमी रिलाई करती है इनके ऊपर। अभी उसके बावजूद आप देखें ना, अभी कोविड की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मतलब उन्होंने अपने वीज़ा या स्टूडेंट
जो प्रोग्राम्स हैं वो शट नहीं किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर इनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है बैडली। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ये डिज़ाइन करते हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स, उनकी यहाँ पर स्कोप नहीं होती, वो इसीलिए कि ज़ाहिर है उनको यूके की डिग्री मिलेगी, वो अपने कंट्री जाके कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनको करनी पड़ती हैं। तो लेकिन मेरी अगर आप सजेशन लेंगे तो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा अगर यहाँ पर आप आते हैं, कोर्स करते हैं, पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो जॉब के पर्सपेक्टिव जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, रोशन नहीं है मैं कहूँगा। तो उस सेंस में आपके पास यूके की डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, और आप वो लेके अपने मुल्क जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो देखने वाली है वो आप लोगों को, वो ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से, इंडिया से और दूसरे कंट्री से, बांग्लादेश से या एशियन कंट्री से, चाइना या कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि चीपेस्ट कोर्स कौन सा मिल रहा है। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, कुछ सीखने आ रहे हैं, तो आपको कोर्स, यूनिवर्सिटी नहीं देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पर आके लर्न करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास डिग्री तो मिल जाएगा, कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन जाहिर है यू वुडंट बी एबल टू प्रैक्टिस। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस करेंगे यूनिवर्सिटी में, जाहिर है मैं तो आपकी जगह एक क्वेश्चन करूँगा कि भाई मैंने डिग्री ले ली, लेट्स सपोज कि मैंने आपकी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर ली है, अब मैं क्या करूँगा, मतलब आप मुझे जॉब दे रहे हैं, मुझे कहाँ पर जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी कैसे मुझे फैसिलिटेट करेगी। अगर यूनिवर्सिटी जो है ना इसके अंदर मेरी मदद नहीं कर सकती, जाहिर है, क्योंकि ये एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है और इससे भी पैसा कमाया जाता है। यूके की जो इकोनॉमी है इसके ऊपर सर्वाइव करती है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। यहाँ पर हर शहर में तकरीबन हर शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ के लोकल्स इतने पढ़ते नहीं है, ज़्यादातर ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, थैंक यू फॉर बीइंग फार्मा बैकग्राउंड। अच्छा, रिची सैगल, आपका क्वेश्चन आया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, आप अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज़, थैंक यू। ये पूरा आप देख रहे हैं, पीछे मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, और ये उधर आप पीछे देख रहे हैं मेरे, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कहाँ है वो, आपको नज़र नहीं आ रहा बिल्डिंग के पीछे, थैंक यू। तो क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं फिर आंसर करूँगा, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है आप लोगों के लिए। अच्छा, as you know, in Asian countries, there's a limited scope. In other words, no scope for clinical pharmacists. We are not right. Government policies are current affair. Okay, that's fine. So, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, वो ये आया है, ये युवराज गौतम साहब ने पूछा है कि एशियन कंट्री से हैं तो उनके फर्स्ट और सेकंड प्लान है। तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कभी कभी जो है सेशन क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी लंबे होते हैं और डिस्कस करने में टाइम होता है, तो बेस्ट ये कि आप इसको सेव करें लाइफ के लिए। तो गौतम साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन में उसको वोट करूंगा कि आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करें, यहाँ पर आएँ और आपकी वाइफ यहाँ पर यूके रजिस्टर्ड हो। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, एक जॉब मिल जाएगी, वो जॉब कर रही होंगी, तो ज़ाहिर है आप उनके डिपेंडेंट हो, आप भी फाइनेंशियल इनकम वगैरह यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जाएँ, आप कन्वर्जन कोर्स करें, दोनों कन्वर्जन कोर्स कर लेंगे, उसके बाद दोनों रजिस्टर्ड हो जाएंगे द फार्मासिस्ट। तो अगर आप वापस भी जाना चाहें उसके बाद, तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है और आपकी जो लर्निंग और आपने प्रैक्टिस से जो चीज़ें सीखी होंगी, वो ज़ाहिर है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। और ओवर द ईयर ज़ाहिर है यहाँ के ट्रेनिंग जो है फार्मासिस्ट की, वो 1 साल की होती है। और अब एक और चीज़ आ गई है, वो आ गई है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो आपका प्रोग्राम है हमारे यहाँ फार्मासिस्ट का, क्योंकि इस साल जो हमारा रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम नहीं हुआ कोविड के चक्कर में, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर एक और साल जो फार्मासिस्ट हैं वो फाउंडेशन ईयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर्स करते हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। एंड क्योंकि फार्मेसी जो सर्विस है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग मेडिकेशन या सप्लाई सर्विस। पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो है फार्मासिस्ट को देखा ऐसा जाता है कि फार्मासिस्ट इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ जो है सप्लाई करे, दैट्स इट। तो अगर सिर्फ सप्लाई ही करनी है तो उसके लिए 5 साल की डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री करने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इन कंट्रीज़ के अंदर कि अपनी जो स्किल्स हमने गेन की हैं, अगर की हैं तो, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के अंदर स्किल गेन करना भी एक स्किल है, क्योंकि आपको स्किल गेन करने के लिए लोग चाहिए जो उस स्किल में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हों या कर रहे हों। तो यहाँ पर इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर प्रैक्टिशनर का है। और टीचर प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर्स जो हैं वो पढ़ा भी रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो 2 दिन जैसे मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक जॉब है, अभी एडवर्टाइज करनी है चला 2-3 दिन के अंदर, तो वो है सर्जरी क्रिटिकल केयर के अंदर टीचर प्रैक्टिशनर। तो वो फार्मेसी विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन सर्जरी इन क्रिटिकल केयर,
और उसके बाद फिर 2 दिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में पढ़ाएगा। तभी अब इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज कर रहे हैं एंड सून इट विल बी ऑनलाइन। सही है। तो इस तरह की जो वैकेंसी, अब देखिए ना, वो फार्मेसी जो सर्जरी में काम कर रहे हैं, सर्जरी मेडिसिन में डील कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि फिर वो जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो सर्जिकल पेशेंट देखते हैं वो शेयर करेंगे। इसी तरह जो क्रिटिकल मेडिसिन के अंदर जो है, जब CCU है, क्रिटिकल केयर है, तो उसके अंदर अगर वो देख रहे हैं चीज़ों को, तो वो जाहिर है अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर शेयर करेंगे। तो वो जो उनकी लर्निंग होगी फार्मेसिस्ट की, वहाँ पर फिर वो अपॉर्चुनिटी देंगे स्टूडेंट्स को कि ग्रुप्स के अंदर जनाब जिन दिन वो हॉस्पिटल के अंदर हैं वो आए उनके साथ और आके फिर जो है उन चीज़ों को लर्न करें। तो ये चीज़ अब यहाँ पर जाहिर ये कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से फार्मेसिस्ट उस तरह से लर्न करते हैं और उस टाइम के ऊपर लर्न करते हैं जब उनको जरूरत है। उसके बाद फिर वो जब फार्मेसिस्ट बन जाते हैं, फिर जब वो हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें वो एक्सेसिबल होती हैं और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में वो इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और फार्मेसिस्ट का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पर वेरी वेरी हाईली रिकग्नाइज्ड है, स्पेशली सेकेंडरी केयर के अंदर जो हॉस्पिटल सेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैं आपसे रेकमेंड यही करूँगा, क्योंकि अगर आप अपनी फार्मेसी खोलते हैं सब कुछ सही है वहाँ पर, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करना अदर देन सप्लाई सर्विस, असल फार्मेसिस्ट की जॉब यही है कि पेशेंट के केयर के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन और किसके आए हैं। ठीक है, अच्छा आयशा चौधरी का मैसेज आया है, वांट टू डू MS इन क्लिनिकल फार्मेसी बट इन बांग्लादेश देयर इज नो क्लिनिकल, सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल फील्ड। अच्छा, आप क्लिनिकल फार्मेसी में MSc करना चाह रही हैं, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेट करें। आप कहाँ करना चाह रही हैं, UK में करना चाह रही हैं, बांग्लादेश में करना चाह रही हैं? अगर आप बांग्लादेश में करना चाह रही हैं तो जाहिर है आपकी अगर हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी पेनिट्रेशन नहीं है जितनी यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट फार्मेसिस्ट की नहीं क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, तो वो आपकी जो डिग्री होगी फॉर द सेक ऑफ डिग्री ही होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज की, क्योंकि पढ़ाने वाले भी क्लिनिकल नहीं है, पढ़ने वाले भी तो थ्योरी का थ्योरी से ही पढ़ के थ्योरी से ही पढ़ाना, तो वो लर्निंग होगी नहीं। क्योंकि अगर मैं इंशाल्लाह जाके पढ़ाऊँगा तो मैं मतलब किताबों के 2-4 जो एग्जाम्पल्स हैं उनके अलावा मेरे पास कई एग्जाम्पल्स होंगे सिचुएशन के हिसाब से, जो अगर आप मुझसे एक दिन बैठ के पूछेंगे तो शायद मैं ना बता पाऊँ। लेकिन अगर सिचुएशन आएगी तो बोलूँगा हाँ इस सिचुएशन मैंने ऐसा किया था। तो वो जो सिचुएशन, वो जो चीज़ें हैं, वो जाहिर है सिचुएशन के वक्त आपके माइंड में आती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिचुएशन को डील किया हुआ होता है पास्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जनाब, अच्छा चोपड़ा साहब का मैसेज है, प्लीज़ मेक मूवी बाय इंटरेक्शन हिस्ट्री टेकिंग पॉसिबल। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और इंटरेक्शन पे ही बनाएंगे। हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर चूँकि ज़ाहिर है पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अप्रोप्रिएट नहीं लगता। डमी पेशेंट में लास्ट टाइम भी किया तो डमी पेशेंट बनाया था, मतलब एक मेरे दोस्त ने वॉलंटियर किया जी, फर्जी नाम रखा उनके साथ हिस्ट्री की। तो जाहिर है इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और इम्प्रूव बनाएंगे आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, कोई इशू नहीं है। इंटरेक्शन ये हैं कि जितने इंटरेक्शन आप मैं शेयर कर सकता हूँ वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था लाइव जाने का, तो अभी जो है इस वजह से आज थोड़ा टाइम निकाला है 2-4 महीने के बाद। अच्छा, साकिब साहब को क्वेश्चन आई वाज आस्किंग, व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट आफ्टर डूइंग फार्मेसी एक्सेप्ट डूइंग ऑस्पैप कोर्स। अच्छा, ऑस्पैप कोर्स करने के अलावा जो है वो और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऑस्पैप के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इंडस्ट्री के लिए कोर्सेज कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस के कोर्सेज हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। बहुत सारे फार्मेसिस्ट आते हैं, वो अपना क्या नाम है रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ हैं, बाद में PhD परसू करके अपना करियर जो रिसर्च के अंदर लेके जाते हैं। और मेडिसिन मैनेजमेंट की डिग्रीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है ना कि आपका जो एक्सेस है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी भी पढ़ाना शुरू करेंगे ओवरसीज़ को, लेकिन उनकी ओवरसीज़ की जो अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट है ना कि UK स्टूडेंट्स की। तो उनके साथ उनके जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही हैं सिर्फ। तो इस वजह से एक मिनट, हाँ, तो इस वजह से जो है वो इन चीज़ों को पूरा करना जाहिर है वो कंपटीशन, वो लेवल, वो कॉम्पिटेंसीज वो अचीव करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल मैं MSc क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जब मैं ये अपना सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कोर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास हॉस्पिटल की एक जॉब हो। अब जाहिर है किसी के पास जॉब नहीं होगी तो वो कैसे वो कॉम्पिटेंसीज अचीव करेगा, और जॉब के बाद फिर वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग लेना करना उसके अंदर कि आपने क्रॉनिक पेशेंट के अंदर ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसी, लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी वो अचीव की। अब जाहिर अगर आप क्रॉनिक पेशेंट की वार्ड में काम करेंगे, ओनली देन यू बी एबल टू ओवरकम दिस कॉम्पिटेंसी, और आप उसको कोड करेंगे। ऐसे कैसे आपने प्रोफेशनल जजमेंट आपको यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी प्रोफेशनल जजमेंट की, तो आप प्रोफेशनल जजमेंट होती क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब उसमें होता बेसिकली है देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी प्रोफेशनल और क्लिनिकल जजमेंट लगा के उसको उस वक्त सॉल्व करते हैं, और कोई और अदर सोर्सेज नहीं होते, तो वो उसको प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं कि किस तरह आपने उस सिचुएशन को जज किया
एनालाइज किया और उसके बाद फिर अपने डिसीजन लिए। इसीलिए जो है ये इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेस हो। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट जो बाहर से आ रहा है और ओवरसीज़ है, रजिस्टर्ड नहीं यहाँ पर, तो वो ज़ाहिर है वो फार्मासिस्ट के अंडर में काम करेगा, उसके पास एक्सेस नहीं होगा नोट्स का। वो जाएगा, हॉस्पिटल वाले भी उसको एक लिमिटेड एक्सेस देंगे। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट से बात नहीं कर सकेगा, वो शैडो करेगा किसी को कि मैं स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लिनिकल नोट्स हैं, अपना आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक्सेस जो है एक रजिस्टर्ड क्लिनिशियन को ही मिलते हैं। तो इस वजह से उसकी जो लर्निंग है वो लिमिटेड होगी। तो थोड़ी बहुत तो लर्निंग होगी उसकी, लेकिन जाहिर है उसके अगेंस्ट जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वही चीज़ है ना कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप मेरे बराबर बैठे हुए, आपको बड़ा ईजी लगेगा यार ये गाड़ी चला रहा है, ये तो इतना आसान काम मैं कर लूँगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा आप आएँ और आप गाड़ी चलाएं, तो जब आप चलाने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये इतना आसान नहीं था, इतना बराबर बैठ के लग रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें चढ़ाई करते हुए मेरी तो सांस फूल गई भाई। अच्छा भाई, तो ये हो गया। और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं भाई? अच्छा, शिराज साहब का मैसेज, आफ्टर गेटिंग डिग्री ऑफ टॉट मास्टर्स फ्रॉम यूके व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट रजिस्टर्ड लाइसेंस। अच्छा, यूके के अंदर मास्टर्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का वो नहीं हो सकता, स्कोप नहीं है उसका। तो उसके लिए आपको एक अलग कोर्स में आना पड़ेगा, OSPAP। तो उसकी वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ देखें उसकी। और किसी और कोर्स पर आएंगे तो वो और कोर्स करना पड़ेगा। भले आप जितने भी 4-5 मास्टर्स कर लें यहाँ से, जब तक आप OSPAP नहीं करेंगे आपको कोई किसी किस्म की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी और फ़ायदा नहीं होगा उसका। अच्छा, और देखते हैं भाई। उमर खान का मैं कैन यू शेयर हाउ टू रजिस्टर द फार्मेसी इन यूके। मेरी एक वीडियो जो 15 नवंबर लास्ट ईयर वो अपलोड हुई थी OSPAP ओवरसीज रजिस्ट्रेशन इन द फार्मेसी इन यूके के ऊपर, तो आप वो जाके देखें तो आपको फिर पता चलेगा कि जो मैंने बात ज़ाहिर है उसके अंदर बड़ा ब्रीफली मेंशन किया हुआ है, मोटे मोटे स्टेप्स हैं। ज़ाहिर है अब मैं हर वीडियो में तो दोबारा से वो स्टेप्स नहीं मेंशन कर सकता, तो आप वो वीडियो देखें। क्वेश्चन हो तो फैमिली पे क्वेश्चन करें। थैंक यू अलीशा तिरमिजी साहब एंड थैंक यू गौतम। अच्छा, वी बी गुड फॉर MSc फॉर्म्स इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अगेन ये मैंने थोड़ी सी पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दी। जब आप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो ठीक है, उसके इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन आपकी अपनी लर्निंग के लिए आप यूनिवर्सिटी के कोर्स मॉड्यूल पर जाएं और उसको देखें क्या है। बहुत सारे लोग जनाब, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ, मास्टर्स इन क्लिनिकल फार्मेसी, आप बोलेंगे यार ज़बरदस्त यार, ये तो मास्टर्स इन क्लिनिकल फार्मेसी मिला है, वो भी यूके यूनिवर्सिटी का है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप क्लिनिकल कंटेंट में गए तो उसमें लिखा हुआ रिसर्च मेथड, सही है। अब उसमें लिखा हुआ है जनाब मतलब फॉर्मुलेशन डिज़ाइन, फार्मास्यूटिकल अपना अपना क्या नाम है अपरेटस या जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स, या आप बोल रहे हैं यार मतलब ये तो क्लिनिकल फार्मेसी की, तो प्रैक्टिस रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी। फिर अगर वो बोलेंगे ठीक है हमें 3 मंथ्स की आपको रोटेशन दे दी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो अगेन वहाँ आप जाएंगे और जैसे मैंने बात की आपको ड्राइविंग की, क्या बराबर बैठ के देख रहे हैं, तो ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं कि आप एक चीज़ बराबर बैठ के देखें और एक चीज़ खुद करें। तो जब आप रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो आप यू आर द बॉस। अभी कम्युनिटी फार्मेसी हो, हॉस्पिटल फार्मेसी हो, उसके अंदर यू आर द बॉस। वार्ड में अगर आप बॉस हैं, टेक्नीशियंस आएंगे आपसे चीज़ें पूछेंगे, डॉक्टर्स आएंगे। अब देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप जो है ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर। अल्लाह ने माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यूके में जो डॉक्टर्स हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उनको ट्रेन किया सेफ प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, रीनल इम्पेयरमेंट हो, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, या बहुत सारी चीज़ें, क्रिटिकल केयर हो, सर्जरी हो, वैलिडिटी प्रोफिलैक्सिस हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कि सेफ प्रिस्क्राइबिंग कब करना है, असेसमेंट कैसे करनी है, और फिर प्रिस्क्राइबिंग करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। क्योंकि ज़ाहिर फार्मासिस्ट आपको पता है कि ड्रग्स जो है वो कैसे जो है ना उसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसकी फार्माकोडायनामिक्स क्या है, ज़ाहिर है ये चीज़ इतनी डिटेल के अंदर डॉक्टर्स थोड़ी पढ़ते हैं, उनका काम डायग्नोसिस है। तो ज़ाहिर है इसके बाद होता ही है कि डॉक्टर जो है वो अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को कि हाँ यार ये जो है ना ये बात करें, इनको पता है। फिर जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, वो जो जूनियर डॉक्टर जो ट्रेन होते हैं आगे जाके कंसल्टेंट बनते हैं, तो फिर जाहिर है उनकी जो अप्रोच होती है आपके साथ वो बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी क्लिनिकल होती है। ना कि भाई फ़ोन करके बोल रहे हैं यार एक ग्लूकोज 5% का जो है 5 मिनट का बैग भिजवा दो, मतलब इस तरह की चीज़ें रफली जो है ना ये है, ऐसा है। और आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे वो किसी भी किस्म की क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में। तो ये आंसर हो गया अक्षय चौधरी का, थैंक यू। अच्छा, व्हाट अबाउट वर्क वीज़ा वंस फिनिश डिग्री। अच्छा, तिरमी साहब का मैसेज आया, जब आप OSPAP का, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेनिंग में किस तरह से होगा। ज़ाहिर है अब 2021 के बाद, मतलब अगर आप अब इस साल सितंबर अक्टूबर में एडमिट हुए हैं तो आपको 2 साल का
वर्क परमिट मिलेगा अगर आपने कोई मास्टर्स प्रोग्राम कर लिया है। प्रीवियसली वाज कॉल्ड पोस्ट स्टडी वर्क, तो जाहिर है अब मुझे नहीं पता उसका नाम यही है या चेंज हो गया। तो उसमें है कि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप ट्रेनिंग कर लें, ट्रेनिंग करने के बाद फिनिश कर लें, उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग करके आप रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद भी आपके पास 1 साल है, तो आपको एम्प्लॉयर से ढूंढ लें जो आपके 5 ईयर्स का Tier 2 वर्क परमिट लगा दे, आपके साथ काम करें। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपने हॉस्पिटल की बात बताऊं, अभी मैंने पिछले साल 1 साल के अंदर 3 स्टूडेंट्स को वर्क परमिट दिया है। तो उनमें से एक इंडियन है, एक मैं बहरहाल बताना नहीं चाहूँगा कि कौन कहाँ से है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। तो बहरहाल तो मतलब 3 ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ पर आए, उन्होंने फार्मेसी डिग्री की, और फार्मेसी डिग्री करने के बाद जो है ना वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए, पर उन्होंने इंटरव्यूज़ में अच्छे मार्क्स, क्योंकि NHS जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते उस सेंस में कि इंटरव्यू स्कोरिंग बेस्ड है सिस्टम, और हमें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, तो हम जाहिर है जो भी अच्छा स्कोर करता है उसको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो है वो रजिस्टर्ड हो यहाँ पर और जॉब लें, और आपकी वर्क परमिट को कंडीशन है तो हम उसको मीट करेंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा भाई, आफ्टर डूइंग फार्मेसी हाउ कैन आई डू दी अप्लाई माई स्किल्स इन USA एंड अदर फॉरेन कंट्री, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। अच्छा ये कह रहे हैं कि फार्मेसी करने के बाद मैं अपनी स्किल्स कैसे अप्लाई करूँगा। देखिए, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उनका प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जब तक आप वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करते आप उस कंट्री में लाइसेंस नहीं ले सकते, और जब आप लाइसेंस नहीं लेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जिस भी कंट्री से आप फार्मेसी की डिग्री करते हैं तो वहाँ पर जाहिर है यूनिवर्सिटी की, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइडर हैं तो उनको बेसिकली लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट दे दिया है, यूनिवर्सिटीज़ वालों की कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब अच्छा ये मैंने चीज़ कैसे नोट की, मैं लास्ट ईयर जब गया हूँ 2019 में, तो माशाल्लाह वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और 16 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया वन बाय वन, थैंक्स टू डॉक्टर हामिद मर्चेंट, उन्होंने रेफरेंस किया, बहुत सालों को बताया कि मैं अवेलेबल हूँ। तो आई वाज ओनली एबल टू अटेंड 8 यूनिवर्सिटीज़। अच्छा उसमें मैं पंजाब भी गया 2 यूनिवर्सिटीज़ में, कराची भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो उसमें हुआ ये कि जब मैंने जाके सेशन दिया, अच्छा चूँकि टाइम की बहुत किल्लत थी तो मेरे पास एक ही प्रेजेंटेशन थी जो मैंने बनाई थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना। अब हुआ ये कि जब मैं वहाँ चला गया तो मैंने सेशन किया वहाँ पर जाके, तो अब जाहिर है वही प्रेजेंटेशन जब मैं यूनिवर्सिटी A में गया हूँ तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, यूनिवर्सिटी B में गया हूँ तो स्टूडेंट्स मेरी शक्लें देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी C में गया हूँ तो बड़े डिसअपॉइंटिंग आंसर्स। तो मतलब आई वाज शॉक्ड टू डेथ कि यार ये लोग फार्मेसी के स्टूडेंट्स स्पेशली particularly those students who were in final year pharmacy programs. So basically what was lacking was no standardization of education. तो होना ये चाहिए, ज़ाहिर है यहाँ पर क्या होता है यूके के अंदर यूनिवर्सिटी जो भी पढ़ा रहे हैं, GPSC ने कोर्स दिया हुआ है, उसके बाद वो देते हैं रजिस्ट्रेशन एग्जाम, वही कहते हैं कि भाई आपने पढ़ लिया यूनिवर्सिटी से आप आ जाए और पास। अब ज़ाहिर है जो ऑडिट होता है यूनिवर्सिटीज़ का वो कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम के रिजल्ट से। अब एक यूनिवर्सिटी है सनलैंड का फॉर एग्जाम्पल 90% रिजल्ट है, UCL का 90% रिजल्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ का 90% रिजल्ट है, नॉटिंघम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भी करीब करीब है। तो अब इन लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स को आप कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल यूक्लान तो इनके 60% आ रहे हैं, ब्राइटन 55-60%। तो अब ज़ाहिर है हम यहाँ पर हैं, हमें रिजल्ट्स पता है तो हम देख रहे हैं कि यार इतने कम रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। अब होता क्या है कि 50% 60% से ड्रॉप होते हैं रिजल्ट्स, GPSC यूनिवर्सिटी को बुलाती है, कहती है आपकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस पुअर है। अब 60% का मतलब क्या है कि 100 अगर स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं तो 60 पास हो रहे हैं, 40 फेल। इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। 90% का मतलब क्या है कि अगर 100 अपीयर हो रहे हैं तो 90 पास हो रहे हैं, 10 फेल, विच इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और ओवर 90% तो ज़ाहिर अच्छी है प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो डिपेंड करता है कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी से क्या लर्न कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फिर कोर्स स्ट्रक्चर आपके पढ़ाने वाले। अगर आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो चीज़ें देखने वाली है ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के अलावा ये ना देखें कि यूनिवर्सिटी टॉप चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि भाई ए यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, इसका बड़ा नाम है, आपने सीखना है, स्किल लर्न करें, कागज़ का टुकड़ा ना लें। याद रखें मेरी बात, स्किल लर्न करें। आप स्किल लर्न करेंगे, कोई आपको जॉब दे ना दे कोई टेंशन नहीं है यार, फार्मेसी खोल के बैठेंगे, आपकी अप्रोच इतनी प्रोफेशनल होगी, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि लोग आपके पास खुद ही चले हुए आएंगे, नहीं यार इस बंदे को पता है। क्यों? क्योंकि आपने स्किल लर्न की है, आपने पढ़ा है, आपने चीज़ें देखी हैं। डिग्री लेंगे तो आप सबको आपको क्लैरिफिकेशन नहीं पड़े, भाईजान फार्म डी में यार डॉक्टर ऑफ फार्मेसी देखो डिग्री है, आपकी बात से लगना चाहिए आपके पास डिग्री है।
आपकी बात से नॉलेज लगनी चाहिए, आपकी बात से चीज़ें होनी चाहिए, आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हो कि भाई मैंने डिग्री की हुई है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं और कौन से आए। मैं वॉक करके थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। अच्छा ये मैंने आंसर कर दिया है चिराज साहब का क्वेश्चन कि आप यूके में मास्टर्स कितने भी कर लें लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन का अलग से देना पड़ेगा। अच्छा IELTS स्टिल 7 ईच बैंड सर। अच्छा ये क्वेश्चन आया है कि IELTS जो है वो स्टिल 7 है। जी IELTS 7 भी है और दूसरा एक और टेस्ट आ गया है तो वो है OET, तो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो ये भी देखिए आप, मैंने कभी दिया नहीं है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसमें आपको बैंड भी लेना है। सहगल साहब का फिर तो सोच के आना पड़ेगा भाई, जैसे आपने OSPAP के बारे में बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। OSPAP इज एन इन्वेस्टमेंट, सोच के आए। और मेरी माने तो आप पैसे अरेंज कर लें पहले, और अगर आप पैसे अरेंज कर लेंगे तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप फुल टाइम पढ़ेंगे, लेकिन अगेन इन्वेस्टमेंट है तो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा। यूके के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर आपका रिटर्न कैसे होता है कि आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेशन के ऊपर चले जाते हैं। बैंड 6 पे आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है जो 31,000 समथिंग सैलरी है एनुअली, सही है। उसके बाद आपको अगर हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके बाद स्पेशलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है कि डिप्लोमा पे डालें, रिगार्डलेस कि आप बाहर के हैं या यहाँ के बंदे हैं, आपका वर्क वीज़ा तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर आपको डिप्लोमा पे डालेंगे, 2 साल का आप डिप्लोमा करेंगे, वो करने के बाद या कुछ केसेस में उससे पहले भी आप बैंड 7 पे चले जाएंगे, सैलरी प्रोग्रेस हो जाएंगे, बैंड 7 स्पेशलिस्ट बन जाएंगे आप रोटेशनल के बाद। 2 साल में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, सैलरी आपकी 38,000 नियरली 39 पर चली जाएगी। उसके बाद अगर कोई लीड की पोजीशन आती है तो 3-4 साल में आप बन जाएंगे लीड क्लिनिकल फार्मेसी, एडवांस क्लिनिकल फार्मेसिस्ट। फिर आपकी सैलरी 45,000 से ऊपर चली जाएगी, और उसके बाद फिर आप ज़्यादा और प्रोग्रेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं अगर आपने MBA किया हुआ हो या आपकी अच्छा एक्सपीरियंस हो। फिर लीड के बाद प्रोग्रेशन थोड़ी स्लो होती है, कभी कभी 10 साल लग जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिकली आप टॉप पोस्ट पे तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं क्लिनिकल। अच्छा गाइस, आपको इसके अलावा मैं पीछे दिखाता हूँ व्यू इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। लेट्स सी कोई रिकग्नाइज कर सकता है या नहीं इस स्टेडियम को। ये दुनिया का मशहूर स्टेडियम है, आजकल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसको कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। लोग इसकी टोपियाँ, इसके स्कार्फ्स और उसकी सारी चीज़ें पहन रहे होते हैं। आप देखिए, दिस इज़ वन ऑफ देयर कार पार्क्स और ये एंट्रेंस है। तेज तेज वॉक करे बंदा, तेज तेज बोले और ज़ाहिर आंसर करे तो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन सर, अच्छा काशिफ नहीं साहब, मैं आपसे इसका लिंक शेयर करता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह उसके बाद आप फैमिली पे मैसेज कर दें तो आपको लिंक शेयर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप फैमिली वीडियोस पर जाएं और डेट चेक करें, नवंबर 2019, मतलब बेसिकली साल भी नहीं हुआ मुझे वीडियोस डालते हुए, तो उसमें जो है वो आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं इसका। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा वो चोपड़ा साहब, थैंक यू। हम लोग अपने आप को आजकल जो है वो अपडेट, सॉरी आवाज़ से आप लोगों को नहीं आ रही, हम लोग अभी अपने आप को जो है आजकल अपलोड नहीं कर रहे हैं टाइम की वजह से, और टाइम की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वो YouTube के ऊपर आपको वीडियोस रिसेंटली नहीं मिल रही। देखिए ऑटम कितना खूबसूरत लग रहा है, सुभान अल्लाह। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, तो ये देखिए आप, ईस्ट कार पार्क 2 है, तो देखिए कैसे सुनसान, कोई मैचेस नहीं हो रहे हैं, बेसिकली हो रहे हैं और स्पेक्टेटर्स आर नॉट अलाउड टू कम इन वॉच। तो ये अगर मैं इस वक्त लाइव सेशन नहीं कर रहा था मैं जल्दी आ जाता। मेरा ये रोज़ तकरीबन रेगुलर वॉकिंग ट्रैक है। तो वकास साहब, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, कैन वी परचेज बुक्स फॉर प्री-रेज एग्ज़ाम फ्रॉम ऑनलाइन? अच्छा, प्री-रेज एग्ज़ाम की बारी जब आएगी जब आप ये पास कर लेंगे। OSPAP यूजुअली आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि OSPAP 5 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर होता है, तो वो आपको इतनी प्रिपरेशन करा देता है कि आपको प्री-रेज की गाइडेंस मिल जाती है। और प्री-रेज में आपके फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं,
अगर आपने प्री रज अच्छी तरीके से किया, कन्वर्जन को अच्छी तरीके से किया, तो यू डोंट हैव टू नेसेसरली सुपर हार्ड आफ्टर योर प्री रज एग्जाम। लेकिन फिर भी ज़ाहिर कैलकुलेशन एक अलग एग्जाम है, उसमें आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। Can you explain from your time in Central University preparation for OSPAP and overall development in the field of pharmacy? अच्छा, फिनलैंड के अंदर ज़ाहिर है जब हमने एक स्टडी की तो हम लोग रखते थे यूजुअली कि एक प्रोग्राम रखते थे, उसमें ये होता था कि हम लोग अपने टॉपिक्स कवर करके डिस्कस करते थे चीज़ों को। तो अब उसमें ये है कि भाई हम 5 बैठ गए, हम सब अपने टॉपिक पढ़ के आगे, एक टॉपिक वगैरह हमने लिया, चलो भाई इसमें क्या होता है, एक बता रहा है, दूसरा बता रहा है, उसने गलत बताया, तीसरे ने करेक्ट कर दिया। होता ये है कि जब आप करेक्ट करते हैं ना किसी को, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है कि मुझे पता है अगर छोपरा साहब मैं कुछ गलत बोलूँ, छोपरा साहब मुझे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो मैं चीज़ अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं यार ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी, क्यों मैंने गलत किया था, छोपरा साहब ने करेक्ट किया। तो एक आपके पीछे ना एक स्टडी के पीछे कहानी बन जाती है। प्लस अकेले पढ़ते हैं, इट गेट्स बोरिंग समटाइम्स ना। आप जब कंबाइंड पढ़ते हैं साथ, तो आप खाना भी बना रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लूडो भी साथ चल रहा है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, तो उसमें ये कि आप इंजॉय करते हैं। तो फैमिली वालों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से कि वो फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आके पढ़ना चाह रहे हैं और इंडिविजुअल हैं, तो ज़ाहिर उसके अंदर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये है। तो अब आप लोगों को मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखा दिया, वापस चलते हैं और प्रोग्राम का थोड़ा सा जो है ना इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा सा लेट शुरू किए थे। उमर ख़ाब चलते चलते मैं आगे निकल गया हूँ, ये तो रूटीन वॉक है। अब वापस जा रहे हैं, देखिए मेरा यही प्लान था, मैंने कहा चलो यार अपनी वॉक के ऊपर भी जाएंगे और जाके जो है थोड़ा सा ज़रा मैसेज देख लें। आपकी बात से लगना चाहिए आप फार्मडी हैं, टेक होम मैसेज ऑफ द डे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वलीद साहब आपका मैसेज अप्रिसिएशन का। अच्छा, OET जो है वो GPSC ने अभी एंटर की है 25 सितंबर को, इन एडिशन टू IELTS, क्योंकि ये जनरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। वलीद आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं। तो अभी करंटली 2 ही हैं और होपफुली फ्यूचर में शायद ये OET को रिप्लेस कर दें, IELTS को रिप्लेस कर दें OET से, तो फिर ये OET ही करेंगे। तो मैं थोड़ा ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि स्टार्ट है, OET वाले शायद थोड़ा हल्का हाथ रखें, GPSC की तरफ से इतनी रिकमेंडेशन नहीं होगी मेरे ख्याल से। आप पाकिस्तान के अंदर मैंने चेक किया था, कुछ इसके ब्रांचेस हैं, 3-4 खुली हुई ऑलरेडी, इस्लामाबाद में है, कराची में एक, तो आप चेक करें उसको। और बैंड भी अगर इसका निकल रहा है, क्योंकि IELTS जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत से लोग स्पीकिंग में 8.58 ले लेते हैं, लेकिन कभी राइटिंग में रह गए, कभी रीडिंग में रह गए, लिसनिंग में जनरली सबका आ जाता है। तो ठीक है, और एक्सेप्टेड है, उनकी यूनिवर्सिटी पे अपडेट हुआ है 25 सितंबर को, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ IELTS की वजह से। और फिर IELTS जो है ना जनरली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको टेस्ट देना हो, तो चूँकि IELTS जो है ना एकेडमिक है, और एकेडमिक में होता ये है कि जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर में वो IELTS कर रहे होते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर कि उसमें इतना रश हुआ हुआ है IELTS के अंदर कि वो जो बेचारे डॉक्टर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं उनको बुकिंग नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब OET स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ केयर है, तो इसमें ये होगा कि आपको बुकिंग मिल जाएगी। मतलब कभी कभी IELTS में तो आपको महीना इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये सूरत हाल भी होती है। अच्छा, रिकी सैगल मैनचेस्टर, यस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वाओ थैंक यू। अच्छा, रिकी सैगल आंसर राइट। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ तो फिर। अच्छा, कशफ नईम, प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंस अबाउट रिसर्च फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द फार्मेसी। अच्छा, रिसर्च फील्ड, चूँकि मैं रिसर्च का बंदा नहीं हूँ, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको जवाब दूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको लें या नहीं लें एडवाइस, क्योंकि अगर बात है क्लिनिकल फार्मेसी की, बात है प्रैक्टिस की, बात है रजिस्ट्रेशन की, तो मैं इंडोर्स करूँगा, क्योंकि उन प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। तो मैं आपको एडवाइस भी करूँगा कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। इस पर यह है कि ज़ाहिर है अगर आपका इंटरेस्ट है तो करें, क्योंकि देखिए रिसर्चर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए रिसर्च में, मेड अप नहीं होनी चाहिए। मेरी बात गौर से सुने, आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं, मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा भी ले आऊँ, हाँ, आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो रिसर्चेज फॉर द सेक ऑफ रिसर्चेज हैं। तो अगर आप रिसर्चेज फॉर द सेक ऑफ रिसर्चेज कर रहे हैं, आपके बड़े जनाब जनरल में नाम आ गए, आपने पता नहीं कितनी रिसर्च कर लिया, आप कितने बड़े रिसर्चर बन गए, लेकिन यार आपकी एक भी क्वालिटी की रिसर्च नहीं है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है दैट यू शुड फील प्राउड ऑफ कि भाई यू एडेड समथिंग टू साइंस, सही है ना, कि आपने कंट्रीब्यूट किया, यू कंट्रीब्यूटेड समहाउ, सही है ना। अब वो आप समझे मेरी बात। तो अगर आपका ये इंटेंशन है जेन्युइनली रिसर्च करनी है, उन चीज़ों के ऊपर करें कि जिनके बाद फिर आप सोचेंगे नहीं यार ठीक है, आई हैव डन समथिंग एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड एंड आई वांट टू बी ट्रूली अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, आई वांट टू ब्रिंग समथिंग, आई वांट टू कंट्रीब्यूट,
something, or I want to bring something new that nobody has. I want to, for example, recently क्या हुआ है कि कीमो एक नए आर्टिकल के ऊपर एक न्यूज़ आई थी कि कीमोथेरेपी के अंदर हुआ क्या है कि 300 ईयर्स के बाद, कीमोथेरेपी का बात छोड़े, 300 ईयर्स के बाद नया ऑर्गन जो है डिस्कवर हुआ है जो सैलिवरी ग्लैंड के पास है बिल्कुल अंदर, और वो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने जो स्कैन किया तो पता चला है कि ये जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो कहने लगे कि कीमोथेरेपी में बहुत इसकी हेल्प होगी, क्योंकि होता क्या था कि सैलिवरी ग्लैंड को कवर करके जो है वो रेडिएशन थेरेपी दे रहे कीमोथेरेपी पेशेंट्स को, लेकिन उसके बाद भी जो सिम्टम्स थे रिलेटेड टू हाइपरसलाइवेशन वगैरह वो हो रहे थे उन पेशेंट्स के अंदर। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसा हो सकता है। अब इनको ये पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ और बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ बहुत ही छोटा सा जो है एक ऑर्गन है, तो उन्होंने ग्लैंड ने इसको ऑर्गन रिफर्ड किया है। तो अब ज़ाहिर है इसके बाद एडवांसमेंट होगी, इसके बाद स्टडी होगी, फिर ये ज़ाहिर है उसको भी कवर करके जब रेडिएशन थेरेपी करेंगे कीमो पेशेंट के अंदर, तो ज़ाहिर है जो हाइपरसलाइवेशन और बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट फेस कर रहे थे तो उसमें नहीं होंगे। अब देखिए ना, ये चीज़ भी तो आई ना 300 ईयर्स के बाद, तो किसने की है? लोग ही कर रहे हैं। तो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर आप देखें रिसर्च के अंदर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आए दिन पेपर्स आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कितनों की है यार। मतलब आप देखते हैं, बोलते हैं यार ये क्या है, ये क्या मजाक है, सही है ना। तो ये सॉरी अबाउट दिस लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। अच्छा भाई, if you apply for MSc program in OSPAP, we'll be able to apply late for the pre-reg training. अच्छा ठीक है। अच्छा, at the moment what happens is when you're in the final year of pharmacy, so when you pass the 3rd year of pharmacy, go to the 4th year of pharmacy, तो then you apply to the नया सिस्टम आया है, वो क्या था ओरियल। तो उसमें सारे जो हॉस्पिटल्स हैं और पार्टनरशिप जो प्राइमरी केयर जीपीज़ हैं उन्होंने साइन अप किया हुआ है वैकेंसीज़ के लिए ना, ट्रेनिंग वैकेंसीज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जिसकी 12 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो हॉस्पिटल में हो रही है, या स्प्लिट ट्रेनिंग है सर्जरी के साथ वो है, या फिर कम्युनिटी के साथ स्प्लिट ट्रेनिंग है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन की ट्रेनिंग है, तो उस पर जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की वो डेडलाइन मिस है, खासकर ऑस्पैप स्टूडेंट जो आते ही सितंबर अक्टूबर में है, तो वो ज़ाहिर है वो डेडलाइन जो जुलाई अगस्त की है वो मीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आते हैं अपने कोर्स स्टार्ट करने से पहले। कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना वो वाइड सेक्टर है, जो कि मेजॉरिटी मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70% ऑफ द फार्मासिस्ट हु आर रजिस्टर्ड इन द यूके दे डू द ट्रेनिंग इन कम्युनिटी। तो और कम्युनिटी के अंदर जॉब भी बहुत ज़्यादा है, और कम्युनिटी हर जगह है, और कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना वो आगे बढ़ रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, प्रिस्क्राइबर्स बन रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी, माने एलिमेंट्स प्रोवाइड करें, फ्लू वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत सारे माने एलिमेंट की कंडीशन के ऊपर वो लोग वहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं। और फिर जब वो वहाँ पर ट्रेन हो जाते हैं तो जीपी सर्जरी में भी काम करते हैं फिर जाके, तो प्राइमरी केयर में उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप प्री रेस्ट ट्रेनिंग मिस कर देंगे, प्री रेस्ट तो आपको मिलनी ही मिलनी, ऐसा नहीं होता। दे आर ऑलवेज मोर प्लेसेस देन प्री रेजिस, तो आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। अच्छा, डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी नहीं यार, कोई इशू नहीं है, आपको आराम से हो सकता है। अच्छा, थैंक यू वलीद भाई, ये फार्म डी ही है। अच्छा, थैंक यू। तो भाई थैंक यू चोपड़ा साहब अप्रिसिएशन का। अच्छा भाई, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, थैंक यू भाई। और कोई क्वेश्चन है? आप लोग को तो आज घुमा भी दिया यार, होप आप लोगों ने मज़े किए होंगे। भाई ट्राम तो नहीं आ रही आप लोग के चक्कर में, ट्राम उड़ा देगी मुझे। तो अच्छा, काफ़ी सनी हुआ है आज और ये सिलसिला। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है? 15 मिनट रह गए अभी मेरे प्रोग्राम में। अच्छा, ऑस्पैप के क्लियर करने के चांसेस, सैगल साहब आप भी मुझे लगता है मेरी तरह हो यार, इस दफ़ा तो चांस नहीं लगता पास होने का। जब हम फार्मेसी करते थे तो हम भी बैक बेंचर्स थे यार, क्यों? इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने में दिल नहीं था यार। तो अब जाहिर है जब पढ़ने में दिल नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर यार जब पढ़ने बैठेंगे तो पास कैसे होंगे? यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पर जो स्टडी है वो आपके इंटरेस्ट बना देती है। वो जिस तरह की और असेसमेंट क्राइटेरिया उनका बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सेमेस्टर आपको करनी होती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग,
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आपको सिनेरियो देते थे हमने, फॉर एग्जांपल किया था कि रेस्पिरेटरी मेरा अस्थमा का सिनेरियो था, पेशेंट A&E में एडमिट हो गया और लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा था, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, पूरी कंडीशन दी हुई है, कब क्या देंगे, फिर उसके स्टैट्स दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन दी हुई है, उसके बाद ब्लड्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जाहिर है फिर आपको उसको मैनेज करना है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, अब आपको पूरी एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करनी है, उसके बाद उसके रेफरेंसेस बताने हैं। मतलब अब आप बताएंगे कि IV हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं, तो हाइड्रोकोर्टिसोन देने के लिए BTS की कौन सी गाइडेंस, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी की कौन सी गाइडलाइन आप यूज़ करेंगे। फिर हाइड्रोकोर्टिसोन IV के बाद आप उसको ओरल प्रेडनिसोलोन में स्विच करेंगे, वो कैसे स्विच करेंगे। जाहिर है अब ये सारी बातें जब मैंने पाकिस्तान से फार्मेसी की थी मुझे नहीं पता थी, सही है ना। उसके बाद फिर आप आगे आएंगे, बाकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसी होगी और आगे किस तरह के रिसोर्सेज रेफरेंसेस किस किस के यूज़ करेंगे, कौन कौन सी जगह है रेफरेंसेस देखने के लिए। जाहिर है जब आप PBL करते हैं तो आपको पता चलता है। फिर वो PBL 3000 वर्ड्स का होता है, सही है ना, 3000 वर्ड्स का PBL होता है। तो मतलब और इसमें आपको मतलब 3-3 हफ्ते चाहिए होते हैं PBL करने के लिए। यूजुअली ग्रुप एक्सरसाइज होती है कि 3-4 लोगों को एक PBL दिया हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में, लेकिन करना अपना अपना होता है, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये लर्निंग तो ये डिफरेंट है। बाकी मैंने ऑस्की मेंशन किया, अब मैं थोड़ा ऑस्की का बैकग्राउंड बताऊँ आपको। तो ऑस्की में क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा ना अपनी तरफ कर लें, हाँ ठीक है, हाँ भाई स्मार्ट लग रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो ऑस्की में क्या होता है कि भाई 4-5 आपके स्टेशन होते हैं। तो उसमें ये होता है, हमारे पास जो था वो 5 स्टेशन थे, उसमें था हिस्ट्री टेकिंग। तो आप पहले जा रहे हैं, एक छोटा सा क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर एग्जामिनर है, एक पेशेंट है, आप गए, आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है। तो आपने बैठना है, एक पेपर लेना है, विदिन 7 मिनट्स आपने जनाब करना है कि भाई पेशेंट से इंट्रोडक्शन करना है, प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस करके आना है, प्रोफेशनल तरीके से आपने बात करनी है। फिर जो एक फॉर्मेट है हिस्ट्री टेकिंग का वो आपने रटना है बेसिकली। उसके बाद थैंक यू सर, उसके बाद जो है ना फिर आपने उसको पूरा करना है। तो जो एग्जामिनर होगा वो खामोश बैठा रहेगा बिल्कुल, सही है ना, वो आपका प्रोसेस चेक करेगा। प्रोसेस चेक करने के बाद उसको 7 मिनट्स की बेल बजेगी, आप जाके बाहर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक वार्निंग बेल होगी 7 मिनट से पहले, फिर 7 मिनट्स रहेगी तो आप बाहर जाके जैसे ही बैठेंगे, फिर एक और बेल बजेगी, आप नेक्स्ट स्टेशन में चलेंगे। तो इस तरह 5 या 6 जो उसकी स्टेशन हैं, तो उसमें ये होगा कि एक एक बंदा बाहर, आप स्टेशन 1 से स्टेशन 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहला हो गया हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप वाया स्टेथोस्कोप जो है या तो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे, कार्डियो करेंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल करेंगे। उनमें से 3 में से कोई भी आपको बोलेगा वो कर ले, वो आप पेशेंट के साथ करेंगे। जाहिर है अब आप जब पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाएंगे तो आप इसके से भी ज़्यादा एग्जामिनेशन करेंगे, हिप असेसमेंट भी आएगी, क्रेनियल नर्व्स भी आएगी, तो वो सारी। अच्छा, फॉलोड बाय ब्लड प्रेशर, आपको मैनुअल ब्लड प्रेशर भी लेना है। ये आपके 2 स्टेशन हुए, सही है ना। अच्छा, हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन ये होते हैं 10 मिनट्स के, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, और बाकी 3 होते हैं 7 मिनट्स के। ये मैं बता रहा हूँ ऑस्पैप में। अच्छा, ये ऑस्पैप का जो असेसमेंट क्राइटेरिया है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है, सब में सेम नहीं है। तो ये मैं सनलैंड की चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर तीसरा स्टेशन है प्रिस्क्रिप्शन क्लिनिकल सिनारियो। उसमें क्या है कि भाई आपको एक क्लिनिकल सिनारियो मिलेगा, आपको कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो चौथा स्टेशन है अपना क्या नाम है काउंसलिंग का। तो आपको एक मेडिकेशन मिलेगी और आपके पास BNF होगी। तो यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि आप रट के आओ, सारी दवाइयाँ रट लो और रोबोट बन जाओ, कुछ याद नहीं हो तो फेल, नहीं। आपको 7 मिनट्स हैं और दवाई मिली हुई है। मेरा जो हुआ था उसमें टैगेटोल आई थी, कार्बामेज़ेपिन। तो आप खोलें, आप क्विकली उसको स्किम करें, पढ़ें, 2 मिनट में आप पढ़ लेते हैं क्या क्या काउंसलिंग पॉइंट्स हैं, पेशेंट किस चीज़ का है। क्योंकि अब टैगेटोल की इंडिकेशन जो है वो नर्व पेन की भी है, वो एपिलेप्सी की भी है, बहुत सारी इंडिकेशन है टैगेटोल की। तो उसमें क्या है कि आप किस इंडिकेशन के पेशेंट को दे रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आप वो करते हैं। तो बाकी तो इस तरह से भी एक कैलकुलेशन का स्टेशन है, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है बेसिक। तो ये इस तरह ये करने के बाद ज़ाहिर है अब आपने एक भी स्टेशन अगर फेल कर दिया है तो उसका मतलब है कि आपने पास नहीं किया ऑस्पैप, तो आपको फिर पूरा उसकी दोबारा देना है। तो ये उसकी ज़ाहिर है चीज़ें हैं, प्रैक्टिस बेस्ड हैं। तो आप लर्न किस तरह करते हैं ये आपको पता है और आपको कैसे पढ़ना है किस यूनिवर्सिटी से, तो आप ये देख सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, थैंक यू भाई उमर खान साहब। चोपड़ा साहब का एक और क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन चोपड़ा साहब एंड द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स। अच्छा, इट्स मोर कंफर्टेबल व्हेन यू गिव एग्जांपल्स, मेंशन एक्सपीरियंस, कि आपकी ड्रग्स की नॉलेज। तो सुन के ऐसा लगता है कि हम आने की बात नहीं है। देखो ना, इट्स नेवर अबाउट के हु इज एन एक्सपर्ट, नो, इट्स अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग
इट्स अबाउट प्रैक्टिस। सही ना, आप किसी को देखते हैं वो प्रैक्टिस के एटमॉस्फेयर में है और प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों की, तो उनकी नॉलेज जाहिर है क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड हैं और वो सिचुएशन के साथ पहले आ चुके हैं, तो वो जो है वो किसी भी सेंस में कंपैरेबल नहीं होंगी जो भले से कोई रट के आ जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड है, आपको एक एटमॉस्फेयर मिला हुआ है उन प्रैक्टिस को लर्न करने के लिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो और कोई क्वेश्चन भाइयों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इधर, क्रिसमस मार्केट लगना शुरू हो गई है, तो सॉरी आप लोग को इधर से दिखाते हैं। ये देखिए, अच्छा वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको उधर, उसके थ्रू में जाके फिर ऐसे गए थे फिर हम लोग, और वहाँ गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपको भी नज़र आ रहा होगा वो। हम वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो सर प्लीज़ ऑल्सो अपलोड, ठीक है मैं इसको सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, और अगर नहीं है तो फिर जो है मैं इजाज़त चाहूँ कि मेरे ख्याल से मेरी मोबाइल की बैटरी भी जो है वो इजाज़त मांग रही है अब। तो ये चक्कर है। अच्छा भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं लाइव, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा हिलता हुआ व्यू नज़र आ रहा होगा क्योंकि सनडलैंड जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव भी है और टॉप भी है, और मैं इसको रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि यार वो असेसमेंट्स आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि बहुत सी जगह, अगर फॉर एग्जांपल आप ब्राइटन चले जाएं, मैंने किसी भी ऑस्पैप को जो सनडलैंड गया उसको फेल होता हुआ नहीं देखा। लेकिन जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तो एक टेक्नीशियन था मेरे साथ, वो भी इंडिया से था, तो उसने मुझे बोला कि आई हैव डन ऑस्पैप। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम टेक्नीशियन क्यों काम कर रहे हो? बोलता है वो मैंने जो 3 अटैम्प्ट थी ना रजिस्ट्रेशन एग्जाम को फेल कर दी। मैंने कहा ऑस्पैप कहाँ से किया? तो उसने कहा आस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम। तो आस्टन थी या ब्राइटन थी, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा कौन सी, लेकिन उन दो में से एक थी। तो ये टिप्स अबाउट कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस। मतलब अगर आप मुझे अभी कैलकुलेशन का एग्जाम पकड़ाएंगे ना कि अब्दुल रहमान भाई कैलकुलेशन करके दिखाओ, मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? कैलकुलेशन किसी को भी पकड़ा देना आप, क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहें कांस्टेंट, तो फिर आप पास करेंगे, वरना नहीं। और बहुत सारे लोगों की क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एग्जाम में वो ओवर 90% मार्क्स लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में 1 या 2 की ऐसे रह जाता है। अच्छा देखिए, वहाँ पर BBC स्टूडियो से हमने शुरू किया था, तो ये अल्केमिस्ट बार है, यहाँ से मैं गया था और यहाँ से मैं आया था, और लास्ट टाइम मैंने सेशन किया था, मैंने यहाँ पर वॉक की थी। तो ये चक्कर है, ठीक है। अच्छा, OET एग्ज़ाम और IELTS एग्ज़ाम फॉर ऑस्पैप। अच्छा, ऑस्पैप की रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों एग्ज़ाम्स जो है ना, आप उसमें से कोई भी दे सकते हैं, और OET के अंदर जो है वो बैंड B चाहिए आपको, और IELTS के अंदर जो है वो 7 in all चाहिए इन 1 सिटिंग, ठीक है। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो टू एक्सप्लेन रजिस्टर्ड मेथड। काशिफ नईम साहब, आपकी जो वीडियो रजिस्ट्रेशन का है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उमर खान साहब, इतने कम लोग क्यों हैं? यूके में बहुत लोग हैं भाई, डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हैं। मैं देसियों की जगह चले जाऊँगा तो फिर आपको लोग ही नज़र आएंगे, जगह नज़र नहीं आएंगी। चलें भाई, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सेशन रहा, बैटरी का टाइम भी जा रहा है और मेरा टाइम भी 1 घंटे का कमिटमेंट जो थी वो पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम निकाल के और वीडियोज़ भी बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर लर्निंग को बढ़ाएं, प्रैक्टिस को बढ़ाएं, ताकि आप लोगों को ये बताना ना पड़े लोगों को कि मैंने फार्मेसी की हुई है। आप लोगों की बातों से, आप लोगों की काउंसलिंग से, आप लोगों की चीज़ों से, आप लोगों की स्किल से आप लोगों को लगना चाहिए। स्किल लर्न करें, डिग्रियां हासिल ना करें। स्किल लर्न करेंगे तो फिर आप लोग कामयाब रहेंगे ज़िंदगी के अंदर, मैं भी कामयाब रहूँगा, मेरे लिए भी मैसेज है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये बताओ, आप जीराट्रिक पेशेंट से टेकिंग एस्पिरिन फॉर कार्डियो। चोपड़ा साहब, आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई करते हैं। ये मेरी बैटरी जवाब दे रही है, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।